Hello, good morning, students. Myself, Dr. Uttara Chandrawat from Government College, Kota. Today, in this e-lecture, I would like to give you an introduction about Manodarpan. Manodarpan is a psychosocial support for mental health and well-being of students during the COVID outbreak and beyond. It is an initiative by MHRD as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, with an aim to provide psychosocial support and counseling to students for their mental health and well-being. MHRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched Manodarpan initiative on 21st July this year. Under this initiative, the minister launched a toll-free national helpline number, a website of Manodarpan, and a handbook on 21st century life skills for the students of school, colleges, and universities. So, those who need psychosocial assistance or counseling can visit the official website of Manodarpan or call on the helpline number 844 844 0632. So, क्या मनोदर्पण जो है कोरोना महामारी के दौरान और उसके पश्चात आप सभी स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थता के लिए मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक सहयोग है. This Manodarpan, it comprises of a toll-free national helpline number 844 844 0632. इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड अ वेबसाइट ऑफ मनोदर्पण. ठीक है. एंड there are some advisory guidelines for the 21st century life skills for all the students. So now I come to the advisory for the psychosocial support and mental health program for the university or college students. An effective and stimulating psychosocial environment is fundamental to learning process to attain one's objective in life. With the emerging needs and concerns of students coming from diverse background, different needs and aspirations, a holistic and comprehensive guiding system in the form of counseling service for mental health and well-being in university and college going students is imperative. The aim of such services is to ensure that students live their lives effectively and productively and become resilient over time with the help of life skills, even in the face of challenges, hard time or road blocks. ठीक है ना. हम जानते हैं कि जीवन में किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और सीखने के लिए, प्रगति करने के लिए एक बहुत ही मजबूत और उत्साहित करने वाला एटमॉस्फेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है. और जो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट एस्पायरेशंस, आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं. तो इन सभी स्टूडेंट्स की उभरती ज़रूरतों और चिंताओं के साथ में कॉलेज स्टूडेंट्स के भावनात्मक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परामर्श सेवाओं के रूप में एक समग्र और व्यापक मार्गदर्शन प्रणाली स्थापित की गई है. इस तरह की सेवाओं का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपने जीवन को प्रभावी ढंग से और उत्पादक रूप से जीना सुनिश्चित करना है और जीवन कौशल की मदद से समय के साथ लचीला बनना है, जिनमें चुनौतियों, कठिन समय और बाधाओं का सामना करना सम्मिलित है. As we know that daily exposure to news about COVID-19 may result in a range of responses, particularly for students who have either been personally affected by the virus or are getting emotionally affected through their loved ones. Reactions can be emotional, somatic, or behavioral and can impact the mental and physical health of the youth countrywide. So, Manodarpan is an initiative of the MHRD to provide psychosocial support for university and college going students, parents, and the faculty to deal with the current circumstances and sudden changes in life as a result of this pandemic. तो हमें पता है कि हम रोज़ अखबारों में जो कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप
जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वह कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पर्सनली इस वायरस से प्रभावित हुए हैं या अपने परिजनों के माध्यम से भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सभी के परिणाम स्वरूप भावनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। और हमें पता है कि युवा जो हैं आप सब, वो देश के आने वाली पीढ़ी जो है, इस देश का संबल है, इस देश का भविष्य है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से देश के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंच रही है। इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस महामारी के परिणाम स्वरूप वर्तमान परिस्थितियों में तथा जीवन में अचानक बदलाव से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक तरह का साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। तो मनोदर्पण जो है एक तरह का जो है एक साइको सोशल सपोर्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द फैकल्टी मेंबर्स एज वेल। Now, what is psychosocial impact of COVID-19 on students? You know, with many universities suspending the classes and closing the campuses for safety reasons, students had to suddenly leave the campus, face unexpected changes in their academic and social life, with greater feelings of uncertainty and dissatisfaction due to classes being held online for extended period of time and diminished opportunities for experimental learning, whether within the campus or outside the campus, in the form of internship. The unusual and abrupt changes in life following the global pandemic outbreak challenges the conception of stability, structure, and normalcy, as many students would feel that they are not getting full value from their education, with limited to no opportunities for work once they graduate. देखिए, विद्यार्थियों पे कोविड-19 का काफ़ी मनोसामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में क्लासेस सस्पेंडेड हो गई हैं और सुरक्षा कारणों से स्टूडेंट्स के लिए जो है ये कैंपस भी बंद कर दिए गए हैं। अचानक से स्टूडेंट्स को परिसर छोड़ना पड़ा, जिससे कि उनकी एकेडमिक और सोशल लाइफ में अप्रत्याशित बदलाव और काफ़ी जो है बदलाव आए हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो सीखने के अवसर हैं वो कम हो गए हैं। अब चाहे वो कैंपस के भीतर हों या बाहर। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उससे अनिश्चितता और असंतोष की भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स के पास जो है और जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने में उनको प्रॉब्लम आती हैं। दूर दराज के गाँवों में कई स्टूडेंट्स जहाँ वो अपने नेटिव प्लेसेस पे चले गए हैं, तो दे आर अनेबल टू अटेंड दीज क्लासेस। तो इस महामारी की स्थिति के परिणाम स्वरूप जो जीवन में असामान्य और अचानक बदलाव आया है, उससे ये जो है स्थिरता, संरचना और व्यापीकरण की अवधारणाओं को चुनौती फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और जैसे ही वो ग्रेजुएट होंगे, काम के अवसर जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। Now we come to the challenges and typical reactions to expect during COVID-19 pandemic. Everyone reacts differently to stressful situations, particularly an infectious disease outbreak that requires social distancing or self-isolation. Okay, so going through such experiences as described, which I'm going to take, is quite natural. But if they are not too overwhelming, in the sense, if such emotions and experiences begin to cause any hindrances to one's normal daily functioning, it is better to seek help timely and recoup. देखिए, कोविड महामारी के दौरान जो जिस तरह की जो हर व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों में से गुजर रहा है और हर व्यक्ति जो है अपनी इन सिचुएशंस के प्रति जो है अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
जैसे कि हम इस संक्रामक रोग का प्रकोप, जिसमें कि सामाजिक डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी और आत्म अलगाव की आवश्यकता होती है, ऐसे अनुभवों से गुजरना काफ़ी स्वाभाविक है। जो कि जैसे कि हम अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं, दुनिया से और दोस्तों से, परिवार से कटा हुआ फ़ील करते हैं। तो इस तरह की भावनाएँ और अनुभव जो हैं, अगर आपके सामान्य जीवन के कामकाज में कोई बाधा पैदा करने लग गए हैं, तो समय पर मदद लेना बेहतर होता है। नाउ क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या फीलिंग्स आ सकती हैं? कंसर्न अबाउट वन्स ओन हेल्थ स्टेटस, खुद के स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। कंसर्न अबाउट इफेक्टिवली मैनेजिंग वन्स लाइफ डिमांड्स व्हाइल चूजिंग टू आइसोलेट फॉर वन्स ओन सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ अदर्स। अपने स्वयं की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जो लाइफ की जो नीड्स हैं, दे गेट अफेक्टेड और दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज। Loneliness associated with feelings of being cut off from the world and from friends and family. अभी स्टूडेंट्स सारे अपने जहाँ पे भी कन्वीनियंट हैं उनके लिए, घरों में या कहीं बाहर, तो वो क्योंकि अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से जो है अलगाव फील कर रहे हैं। हाँ, दे फील स्टिग्मेटाइज और सिंगल्ड आउट। अकेलेपन का जो भाव आ रहा है सभी में, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अबाउट नॉट बीइंग एबल टू अकम्प्लिश योर टास्क और फिनिश वंस कोर्स और डिसर्टेशन ऑन टाइम। जो हम अपने टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपना डिसर्टेशन टाइम पे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब से मिली जुली एंगर और फ्रस्ट्रेशन की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। Boredom and frustration because of not being able to work or engage in regular day to डे एक्टिविटीज़। हम अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जो है वो एक तरह का बोरियत और निराशा भी पैदा हो सकती है। अनसर्टेनिटी और एम्बिवेलेंस अबाउट द सिचुएशन, हम सिचुएशन के प्रति जो है अनिश्चित और अस्पष्ट जो है फील कर रहे हैं। A desire to use unhealthful coping behaviors that interfere with the normal routine, such as excessive late nights or overeating. घर पे बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं लंबे समय तक, रात को देर रात तक जग रहे हैं या ओवर ईट कर रहे हैं, तो बिंज ईटिंग कर रहे हैं। तो एक तरह की अनहेल्थफुल लाइफस्टाइल है जो है। वी ट्राई टू कोप विद दिस टेंस सिचुएशन इन सच मैनर्स कि हम देर रात तक कोई मूवी देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ। जनरल वरी एंड कंसर्न अबाउट द पेंडिंग एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा कॉलेज के अंदर। तो these are some concerns. Concern about the marking system under current circumstances and the grades. पेपर हो रहे हैं, अगर हो भी गए तो किस तरह की मार्किंग की जाएगी, ग्रेड क्या मिलेगी। वरीज अबाउट डाटा कलेक्शन फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स, जो अपना रिसर्च को जो परस्यू कर रहे हैं उनको अपना सर्वे और डाटा कलेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबमिशन ऑफ फाइनल रिसर्च वर्क एंड द रिजल्ट्स। So these are some concern about the worries related to this pandemic. Losing opportunities for learning and experience in term of undergoing training in companies or industries during break. जो हम अवकाश के दौरान कंपनियों और इंडस्ट्रीज़ में जो ट्रेनिंग लेते थे, उसके रेफरेंस में सीखने और अनुभव के अवसर जो है हम खोते जा रहे हैं। लूजिंग आउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्लेसमेंट इन कंपनीज एंड वरी अबाउट रिपेमेंट ऑफ स्टूडेंट लोन। तो कंपनियों में जो प्लेसमेंट होता था उनके अवसर भी वी हैव लॉस्ट। टेंशन अबाउट द पेंडिंग रिजल्ट ऑफ अ जॉब इंटरव्यू, जो नौकरी के साथ जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके जो परिणाम पेंडिंग हैं उनके बारे में भी हम तनाव फील कर सकते हैं। So there is a need to acknowledge the effect of prolonged stress on emotional health of students. Conduct activities that can help from them deal with the same
and identify the best way forward to enable learning, psychosocial wellness, and physical health. Some of the tips and resources given here, which I am going to take in the next lecture for psychosocial support, might be useful in finding out the best way to cope and recoup. So, see you in the next lecture. Thank you.